I like to make an entrance. Any favorite dialogue from the show? ऐसे like this. बात कर रही हूँ. I don't want to pinpoint anything. A show that changed your life. यही बोलने वाला था. Hello and welcome back to another episode of Talk Beyond Title, because a title never tells the whole story. Today we are in conversation with some special guests from the show Gehenna. Raghav and Urvashi, played by Mr. Prakash Ramchandani and Shraddha Singh. Known for their powerful performances, they have won hearts of many. Hello, Hello. welcome back. Thank you. Thank you for calling. Yes. आपका first time है, so how are you feeling? Yeah, I'm feeling good. Yeah. Nice. Good to be back. Yes. Yes. Too good to be back. Okay. So before we start, we have a quick icebreaker session. Okay. Okay. So the first question would be, what is the first thing you guys do after pack up? I rush to my makeup room. Me, I go home straight. मतलब after pack up, you're so tired. I go home straight, have food, and go to bed. Okay. मतलब इतना थकान हो जाती है सवेरे से अगर आप काम करो तो. That's what I do. But I can go and watch TV and then go to sleep. Okay. Any favorite dialogue from the show? From the show. Yeah. Oh, there was this dialogue. तू मेरी बात तो मानो. And my favorite dialogue, Alia, आयुष्मान तुम्हें नहीं मिलेगा. उसका सपना मत देखो. I always used to say that. Yes. इनका एक और रेगुलर डायलॉग था कि जो तुमने मेरे साथ किया वो तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के साथ कर रहा है. Right. Nice. A show that changed your life. Changed my life. Actually, there were 3 shows, I would say. My first show, Imtihan, which definitely got me into the limelight. That was 30 years back, 32 years back. Then there comes a lull period for an actor. And after that, when you get a show and again you appreciate it for that show, that was Udan 10 years back, which actually gave me my confidence back. And then a new lease of life was this Gehenna for me. It was a new lease of life. I mean, I think you would also agree. It is a new lease of life for many of us. Many of us. And for me, my show comes Jodha Akbar. I did it in, I think, 2013 or 14. And it actually changed my life. I worked there for 2.5 years. Okay. And that was an amazing experience. और उसमें everyday dress up होना मुगल्स की तरह Yeah. और वो ना कभी कभी सर्टन ना ऐसी फीलिंग आ जाती थी कि आई यूज्ड टू फील कि आई वाज प्लेइंग गुलबदन बेगम पर वो फीलिंग ऐसी आई कि हाँ एज इफ आई एम गुलबदन. Okay. तो पूरा चेंज हुआ. बहुत बड़ी यूनिट थी. तो और इनिशियल डेज में का काम था मेरा. देन केम अजूनी. इट वाज ऑन स्टार भारत एंड आई वर्क विद द नाइस वेरी नाइस टीम and especially Pankaj Dhirji, who is not today with us, but rest in peace. He was a beautiful soul, and with him, the experience was amazing. I learned so much things from him. And yes, the third comes Gehenna. Gehenna में they gave me such a different look. मतलब कि I don't think कि people imagine me like that. The look they gave, and now everybody calls me for that. Yeah, we want you in that Gehenna look only. So it has changed the perception, how people used to think about me and how people think That's great. used to take me. Oh, that changed my life. If you weren't an actor, what would you be? Doctor. Academically, I'm an engineer, a very bad engineer. My bad. वो सर्किट्स मेरे को एक ही सर्किट 6 अलग तरीके से समझ में नहीं आते थे. मैं एक समझ लेना काफी है, दूसरा नहीं समझना मुझे. एंड इफ नॉट एन एक्टर आई वुड हैव, मतलब इंजीनियरिंग तो मैंने की, बट आई वुड हैव जॉइंड द फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस. आई वुड हैव बीन ऑन द बॉर्डर. आई मीन होता है ना, गन्स, चेन्स, आमो, अ मैन्स लाइफ, वो मजा था.
One role you wish you had played. Two, three kinds, very different kinds. Like there was this role Nana Patekar sahab did in Pratighat Okay. of a police officer who cracks up. You have to see it. Okay. I'll watch this. मतलब शुरुआत उन्होंने एज अ पुलिस ऑफिसर की एंड उसकी बीवी का मर्डर हो जाता है और उसका वहाँ का गुंडा जो है उसका मर्डर करता है, ये पागल हो जाता है और पागलों की टीम खड़ी करके उसके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ता है. इंटरेस्टिंग रोल, बाकायदा भिखारी की तरह रास्ते में घूम रहा है. You have to see that film, Pratighat. That is one role I would love to play. And there was this role Mr. Rajesh Khanna had did in a film called Aradhna, Mere Sapno Ki Rani Kab. You have to see that. It's a very interesting film. Because Mere Sapno Ki Rani is not Aradhna. He plays the father. The father dies. Sharmila Tagore gives birth to a son, which is again Rajesh Khanna. Watch. Which is again Rajesh Khanna. Yeah. And ये रोल करते करते रहेगा मैं. Okay. उस फिल्म में नहीं. That kind of character. अतिन चक्रवर्ती एक सीरियल बना रहे थे इनिशियल डेज में, where Renuka Shane was paired opposite me. In my first show, she played my Didi, and after that, we got this offer. She was paired opposite me, and I die in that. I again come to life as her son. It was Aradhana, straight, but वो बना नहीं कभी शो. पायलट हमने शूट किया था. Very interesting role. And for me, I loved Mother India. Okay. I don't know if you have seen that or not, but Nargis ji played that character of the mother, and it was beautiful character, beautiful variations in that character. So I wish I could do someday character like that. And another role is Lamhe, Sridevi in Lamhe. That what a role. Different variations of the character. So I just want to play What that. a role. What a role. Actually, what a role. What is your go-to snack on set? On set, go-to snack, Vada pav चाय for me, उसकी वड़ा पाव, for me Yeah. वड़ा पाव. मैं भेल मंगवा लेता था, सेवपुरी मंगा लेता था. वड़ा पाव नहीं, भजिया पाव मैं और गहना बहुत खाते थे. तो वो आती थी, पापा अभी लंच तो हो गया, अभी शाम को भूख लगी, खाओ ना वड़ा पाव. हाँ, भजिया पाव मंगाता हूँ. जावा ही लेके आता हूँ. हम चुपके खाते तो पारस आता था. तुम लोग बोलते तो मैं भी खा लेता हूँ. खा ले भाई. But I like roasted chana or boiled chana with fruits. It gives so much energy for shooting. And sometimes vada pav also. एक्सेप्ट कर लिया, नहीं तो उसको पता तो बोल देना. नहीं बोलते. थोड़ा चीट चलता है डाइट. बहुत होता है, थोड़ा नहीं. Okay. A director which brings out the best in you. मैं मेरे ख्याल से पिछली बार भी बताया था मैंने. एक डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया था. मैंने फर्स्ट सीन जब उनके साथ किया तो मुझे लगा, मैं तो चौड़ में ना, मतलब इतना साल मैंने किया और इतने साल एक्टिंग किया था. बोले नहीं, इसको ऐसे करते हैं. Yeah. मैंने इसको चाहिए क्या, समझ ही नहीं आ रहा था. लास्ट में मुझे मजा आने लगा उसके साथ काम करने में, बिकॉज ही वॉज डूइंग, मतलब वो एक टेक था कि मेरी बीवी बोल रही है, सडनली रिएक्शन, एक गाली निकलती है मुझसे. 7 टेक करवाए उसके मेरे. मैंने किया, मेरे को मजा आने लगा. लास्ट डे ऑफ द शूट, लास्ट सीन, Yeah. मतलब सीरीज रैप अप हो रहा था. मुझे लगा था ये डायरेक्टर है, ये कुछ करेगा बहुत. एंड फिर जब रिलीज हुई सीरीज तो मैंने लिखा था फेसबुक, पिछली बार बताया भी था मैंने लिखा था फेसबुक पे कि बिगेस्ट एसेट एन एक्टर हैज इज अ गुड डायरेक्टर है. लाइक टू मेंशन आदित्य सरपोतदार. मैं बात कर रहा हूँ राइकर Yes. सीरीज की, और मैंने 6 महीने के अंदर उसकी ज़ोंबी वाली देखी, और Yes. 1 साल के अंदर उसकी मुंजा देखी. एक और मैं बोलूंगा, मेरे ख्याल से पिछली बार भी बताया था, विशाल फुरिया, क्रिमिनल जस्टिस का डायरेक्टर. Yeah. वो भी अच्छी छोरी एंड ऑल दैट स्टफ फिल्म बना रहा है. बहुत अच्छा. मैंने विशाल से बात की ऐसे बोला अगले 2 साल तक मैं बहुत बिजी हूँ, कोई स्क्रिप्ट मत देना, बाकी रोल के लिए बुला रहा हूँ. तो मैंने कहा ठीक है. And for me, it was my initial days, or when I was not comfortable in giving auditions because everything was new for me. And imagine first project I got was Chilla Party. And उसकी भी स्टोरी ऐसी है कि मैं ऑडिशन देने जा नहीं रही थी, बट बुलाया, बार-बार बुलाया, तो मुझे लगा कि पता नहीं, मुझे ये था कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, व्हाई शुड आई गो, अभी तो मैं आई हूँ, पता नहीं फिल्म में थोड़ी हो जाएगा डायरेक्ट. बट इट हैपेंड, एंड नितेश तिवारी जी वाज द डायरेक्टर. एंड
वो एक्चुअली बहुत ही अच्छे और डायरेक्टर हैं और जैसा कि उनके प्रोजेक्ट्स में भी दिखता है छिछोरे है, बहुत सारी मूवीज़ Yeah, उन्होंने की दंगल, तो वो आई वाज़ अ न्यू कमर एट दैट टाइम और थोड़ा-सा क्या होता है आप नए-नए होते तो थोड़ा कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है yes, आपके अंदर ना, बट उनका जो डायरेक्शन था, जिस तरीके से वो समझाते थे एंड आपको कंफर्टेबल करते थे, yeah. उस तरीके से मतलब ही जस्ट गॉट द बेस्ट फ्रॉम आउट ऑफ मी एंड वो आज तक जो है मेरे दिमाग में जो इम्प्रेशन है वो अभी तक उनका है, छाप पड़ी हुई है। Nice. अच्छा, रिसेंटली किसी डायरेक्टर के साथ काम किया, हु गॉट द बेस्ट इन यू, बेस्ट आउट ऑफ यू? अच्छा, Very good. I worked with him, sorry. Sorry, I forgot him. I worked with him and yes, he explains your scenes and everything Yeah. very nicely. और अगर सपोज जो ये चाह रहे क्योंकि क्या होता है ना आप एक्टर के आपका अपना एक थॉट प्रोसेस होता है एज एन एक्टर आप एक सीन को अलग तरीके से सोचते हो उसको Yes. परसीव करते हो डायरेक्टर का विजन अलग होता है तो अगर आप सपोज वो विजन पे नहीं आ रहे हो तो वो आपको लेके आएंगे ही विल Yes. परफॉर्म एंड शो यू शायद एक्टर हैं राइटर हैं इस वजह से ये भी प्रिविलेज है इनको बट एक्चुअली बहुत अच्छा कोई ऐसा ड्रीम OTT सीरीज या शो which you would want to work? Dream OTT series या show which I would want to work. Or a character maybe. Money Heist, I would love to do on Netflix. I would love to do Money Heist. That's a great show, yeah. That's a great show. मतलब ऐसा शो अगर इंडिया में कोई नहीं बनाएगा तो मैं बना लूंगा, बनाऊंगा जरूर। आप भी रहना साथ में। Yeah. and I am a fan of Korean series. So I just because I wanted to become a doctor and I became an actor. So ऑफ स्क्रीन नहीं तो एटलीस्ट ऑन स्क्रीन मैं वो प्ले करना चाहती हूँ सो आई लव डॉक्टर सीरीज इन कोरियन सीरीज और उसमें क्या स्पेशल मुझे क्या लगता है वो प्रॉपर ना प्रोसीजर्स भी दिखाते हैं कोई Okay. ऑपरेशंस होते हैं तो दिखाते हैं अगर हार्ट का सर्जरी है तो दे शो द प्रॉपर प्रोसीजर्स कि हाउ दे आर परफॉर्मिंग इट Okay. हमारे यहाँ डेली सोप्स में अगर आप इफ यू हैव बिकम अ डॉक्टर एज इन गए ना आई वाज अ डॉक्टर तो लेकिन वो डॉक्टर कभी ओटी में नहीं गई कभी किसी पेशेंट को उससे I was also playing a doctor in that. और कभी हमने कोई डॉक्टर टर्म भी यूज नहीं की Okay. तो आई वांट टू प्ले अ डॉक्टर इन आई वांट सच अ सीरीज और जिसमें मैं कुछ प्रोसीजर्स भी करूं हार्ट सर्जरी करूं लंग की सर्जरीज करूं कुछ करूं You are playing a doctor. यस बट आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे वो सर्जरीज वाला वो करना है ऑन स्क्रीन So Dr. Dhara will do a lot of हां things. सो वेरी नाइस Dr. Dhara will do a lot love of that. things. If your life was a TV show, what would it be named? मैं बोलती हूँ पहले ये कहाँ आ गए हम Mine would be Imtihan. ओ Mine would be Imtihan. And as always, I would pass with flying colors. So let's go back to the behind the scenes of the show Gehna. Yes. So what was your first impression when you guys first met? मैं बोलूं मैंने आप बोलेंगे अच्छा, पहले आप बोलिए। मतलब मेरा तो ऐसा इंप्रेशन था कि माय गॉड ये बहुत सीरियस सा कोई नहीं होता है और बहुत गुस्से वाले होंगे एंगर होगा बहुत ज्यादा पता नहीं इनको देख के ऐसा लगा था कि भाई स्टे अवे ज्यादा बात नहीं करना ऐसा वाला था मैं यूजुअली आई कीप टू माई सेल्फ अ लॉट मैं ज्यादा मिक्सअप नहीं होता मैं खड़ा था एंड पता चल रहा था आज उर्वशी के साथ सीन है फर्स्ट सीन एंड ये उठ के वहां से आई बहुत स्टाइल में से बोल्ड then she came up hello I'm Shraddha मैं हो गया ये कौन but that was very normal ना hello hi I'm Shraddha it's like that because I wish to everyone हाँ नहीं वो that's okay for me it was like a cultural shock अरे बाप रे कौन आ गई cultural shock हाँ क्योंकि उससे पहले जो सेट में जितने थे सब ऐसे ऐसे रहते थे Okay. मतलब बाकी के सेट्स पे मैंने जो देखा है ऑफ कोर्स मीठा होते हैं हाँ. बट एक चीज बहुत सही थी हाय I'm Shraddha जेन्युइनिटी बहुत थी वो शुरू से लगा हाँ बहुत जेन्युइन है but पता है I have seen the senior actors senior actors also when they come on the set ना they wish everyone even I do everybody so I've learned from them only कि हाँ तो even I do मैं आपके इंप्रेशन की बात कर रहा हूँ तो तो क्या आपको क्या लगा मैं कैसी हूँ नहीं मुझे लगा कि बड़ी कॉन्फिडेंट बहुत ये है बट कॉन्फिडेंट ऑफ कोर्स लगा बहुत कॉन्फिडेंट है एंड बहुत ही बोल्ड मेरे को लगा
अभी देख रहा हूँ कि शी इज वेरी डोसाइल यार, शी हैज अ वेरी सॉफ्ट साइड आल्सो। एंड जो पहला सीन हमने किया, आप यू हैव टू बिलीव दिस, जो पहला सीन किया, हम लोग बैठे हैं, मेरे बेटे की शादी की बात चल रही है, और बाहर से ढोल ताशुकिया आवाज आ रही है, एंड शी एंटर्स पूरा स्टाइल में, विद द ढोल और ताशा and all. मतलब बैंड वैंड लेके आई कि तुमने ये किया, और वो डायरेक्टर सर आपका पुराना एक्स आ रहा है पीछे से मेरे को बोल रहे, जो डायनामिक इसने सीन किया था, मैंने कहा हाँ। बट अभी ऑफ लेटली देखा कि शी हैज अ सॉफ्ट साइड आल्सो। तो मतलब पहला इंप्रेशन वो था कि वेरी डायनामिक, वेरी बोल्ड, वेरी कॉन्फिडेंट। नहीं बाबा, ये साइड भी है। ओके, ये मैंने इनके जब पॉडकास्ट पे भी बोला था कि एवरी एक्टर हैज, आई मीन इफ यू आर एन एक्टर, आई हैव टू सी ऑल ऑफ योर इमोशंस, Yes. आई हैव टू सी ऑल ऑफ योर इमोशंस। If you cannot emote all the emotions, then sorry to say, you're not an actor. You're just a stereotype, which is working. जो बहुत से एक्टर्स हैं स्टीरियोटाइप हैं, और स्टार्स हैं बड़े बड़े, हाँ चलता है, वैसे वाले बहुत हैं। बट आपका भी ऐसे ही था जैसे मैंने सोचा था, बट यू आर नॉट लाइक दैट, यू आर वेरी सिंपल एंड easy going person, Very easy, happy go lucky kind, happy go lucky, very happy go lucky kind, and you very, help people, you help your friends and everything. I help everybody. हाँ, मेरा इंप्रेशन पहला अजीब सा पड़ता है, और मेरे को एंड आई एम यूज्ड टू इट नाउ, मेरे को मालूम है हाँ ये पड़ेगा इंप्रेशन, तो मेरे को आदत पड़ गई उसकी। एंड कई बार मैं एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करता, हाँ पढ़ा नहीं कुछ पढ़ने दो, भाड़ में जाए। ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन डिफरेंस भी होना जरूरी है हाँ ना। हाँ अब होता ही है, पता है, हर एक का फर्स्ट इंप्रेशन कुछ अलग ही होता है, Yes. लाइक दैट. मतलब आप नोटिस करो, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर जितने नेगेटिव रोल करते हैं ना ऑफ स्क्रीन, इतने अच्छे इंसान होते हैं वो। मतलब आप मेरे को जानते हो, मेरे रोल सिर्फ नेगेटिव हिट हुए, और जितने पॉजिटिव रोल करते हैं वो ऑफ स्क्रीन देख लो उनकी हरकतें देख लो ऑफ स्क्रीन। सो श्रद्धा जी, आपने आपका एक्टिंग करियर कैसे स्टार्ट किया? ये बहुत डिफरेंट था, बिकॉज कभी सोचा नहीं था ऐसा कि एक्टर बनूंगी, बट हाँ मुझे ना स्कूल टाइम से ही बहुत इंटरेस्ट था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, प्लेस करना, ड्रामा, थिएटर, और मेरे डैड जो है फूड कॉर्पोरेशन में थे, और हमारी फैमिली टोटली डिफरेंट था, कोई भी एक्टर नहीं था हमारी फैमिली से, तो बहुत डिफिकल्ट था उनसे परमिशन लेना, तो मॉम को थोड़ा समझा बुझा के, बिकॉज आई एम द ओनली डॉटर, तो मॉम ने बहुत हेल्प किया, तो आई डिड थिएटर इन लखनऊ। फिर वहाँ से मुझे लखनऊ दूरदर्शन उस समय बहुत इन था, जब हम लोग थे, करियर बनाने के लिए बहुत अच्छा होता, तो वहाँ पे मैंने वहाँ काम किया, एंड उसके बाद आना था मुंबई, बट नहीं हो पाया, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस रहे, बट आई वर्क देयर, और फिर काफ़ी इयर्स का गैप आया, देन कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस बनी कि आई मूव टू मुंबई। फिर यहाँ से जो पहली शुरुआत थी वो मेरी चिल्ला पार्टी थी, Okay. एज आई सेड, बिकॉज और मुझे आज भी बिलीव नहीं होता है कि कैसे मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट ही इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिला, और इतने अच्छे लोगों से वहाँ मुलाकात हुई, एंड उसके बाद फिर टचवुड, फिर आई हैव नेवर लुक बैक, फिर थिंग्स कीप कमिंग, Yeah, एंड that's great. दैट्स ग्रेट, Yeah. गॉड इज ग्रेट. एनी ऐसा कुछ रिचुअल या हैबिट जो आप लोग शूटिंग, मतलब सेट पे शूटिंग के पहले, एनी स्पेसिफिक रिचुअल, मे बी मैं जब भी मैं अपना कोई सीन स्टार्ट करती हूँ सेट पे, तो मैं अपने मन ही मन ओम श्री गणेशाय नमः बोलती हूँ, और मैं बोलती हूँ भगवान जी आप मेरे साथ रहिएगा जब तक मैं ये परफॉर्म कर रही हूँ, और मेरा बेस्ट मैं निकाल के दीजिएगा Yeah. मेरे अंदर से, ये. सेट पे यूजुअली शूट स्टार्ट होने से पहले गणपति जी की पूजा होती है, एंड मेरी पर्सनल आदत है, मैं सेट पे जाके एक बार कैमरा को छू के प्रणाम जरूर करता हूँ, क्योंकि वो हमारी रूल्स है, ये एक रिचुअल है, वो अब रिचुअल बोल सकते हैं, हाँ वो तो हम सभी करते हैं, कैमरा को छू बहुत के एक बार जरूरी है. प्रणाम जरूर करता एंड आप लोग मतलब बेसिकली अगर कुछ इमोशनल कैरेक्टर हो गया, तो हाउ डू यू गाइस प्रिपेयर योरसेल्फ? मेरा ऐसा है कि जैसे पहले तो कैरेक्टर क्या है, और वो कैरेक्टर की जो है वो किस माहौल में रहता है कैरेक्टर, और उसके साथ उसके पास्ट में क्या हुआ है, उसकी अभी का क्या चीजें हैं, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज उस हिसाब से ही बनती है, फिर वो जो डायलॉग्स हैं वो कैसे बोलेगा ये कैरेक्टर, किस तरह से उठेगा बैठेगा, और अगर मुझे पहले से ब्रीफ होता है तो मैं स्टडी भी करती हूँ, मैं जो भी अगर कैरेक्टर करना है मुझे, आई गो टू देखती हूँ वीडियोस, देखती हूँ बहुत सारी चीजें, रिसर्च करती हूँ उस पे,
एंड देन आई परफॉर्म इट। और मैं ये हमेशा सोचती हूँ कि ये जो कैरेक्टर है ये मैं ही हूँ। बहुत सारे लोग ना कई तरीके से परफॉर्म करते हैं। कुछ लोग खुद को उस कैरेक्टर में डाल के सोचते हैं कि हाँ, उर्वशी इज मी, श्रद्धा नहीं हूँ मैं, आई एम उर्वशी। कुछ लोग सोचते हैं ये श्रद्धा है, ये उर्वशी को ऐसे कर रही है, प्ले कर रही है। तो मैं वैसे प्ले नहीं करती हूँ। तो उस तरीके से मेरा प्रिपरेशन रहता है। मेरा टेल यू द फैक्ट, जिस स्कूल से मैं आया हूँ, एक्टिंग स्कूल क्या, बेसिकली आई वाज एन असिस्टेंट टू रवि राय, तो हमारा वो गुरुदत्त का ही लाइनेज है। You will be surprised to know I never approach a character as such. You will be surprised to know I never approach a character क्या सोचता होगा, बैकग्राउंड क्या होगा, और उसके घर में क्या होगा, सवेरे नाश्ते में क्या खाया होगा, कुछ नहीं सोचता हूँ। आई जस्ट रीड द सीन, लिखा क्या है और वो फील क्या दे रहा है मेरे को, वो अपने आप आएगा। उसका बैकग्राउंड भी निकल के आएगा उसमें से, क्योंकि अगर कैरेक्टर किसी ने सोच के लिखा है, उस डेप्थ को आपने समझा कि राइटर ने कुछ सोचा है, उस डेप्थ को समझा, तो राइटर ने वो उसका बैकग्राउंड सोच के ही लिखा होगा ना, बस मेरे को उस डेप्थ को समझना है, उस लाइन की उस डेप्थ को समझना है। लाइक थिएटर में एक लाइन सिखाई जाती है कि एक लाइन कितनी तरीके से बोली जाती है, मतलब जितने शब्द हैं उस लाइन में उतने तरीके से वो लाइन बोली जाएगी। तो ये मेरा चाचा है, जनरल लाइन। अब इसका वेरिएशन, ये मेरा चाचा है, वो नहीं है, ये मेरा चाचा है, तेरा नहीं है, ये मेरा चाचा है, मामा नहीं है, ये मेरा चाचा है, से बोल रहा हूँ, एक ही लाइन है, पर वेरिएशन इतनी है जितने वर्ड्स है उसमें। तो उसी तरह से जो राइटर ने लिखा होगा, बहुत डेप्थ के साथ लिखा होगा, उसको सिर्फ मैं पकड़ लूं डेप्थ को, अपने आप कैरेक्टर आएगा। So you both have made your mark in the industry. So how did Gaina come your way? I was doing a show called Mera Balam Thanedar in Rajasthan, Jaipur and Pushkar. रेगुलर नेगेटिव रोल जो मिलते हैं मुझे, नेगेटिव रोल कर रहा था, एंड वहां मुझे कॉल आया कि ऐसा ऐसा एक शो है। मैंने कहा मैं किस एंगल से एक दो साइड डॉक्टर लगता हूँ तेरे को, मैं तो हमेशा वायलेंट रोल्स करता हूँ, ट्राई तो करो। ऑडिशन भेज दी मैंने, फिर मुझे फोन आया कि आइए मॉक शूट के लिए आइए, लुक टेस्ट हुए, मॉक शूट फिर गया, फिर कोई नहीं, सिर्फ मैं अकेला मॉक शूट के लिए। एक डायरेक्टर का फोन आया पुराने, कहाँ है आप, कहाँ है? मैंने कहा इतने टाइम के बाद क्या हालचाल, क्या हालचाल, कहाँ रहते हो? मैंने कहा, तो कहते मेरा रोड। मैं अभी मेरा रोड में हूँ। अच्छा, मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। नीचे उतरा तो मॉक शूट के लिए वही डायरेक्ट करने आए थे। मैंने कहा अच्छा, सरप्राइज देने वाले थे। हाँ, मैं झूठ बोलता तो पकड़े जाते। तो जब मैंने वो सीन किया कि मेरा नाम डॉक्टर राघव राय सिंह है, एंड मैंने अपनी जिंदगी सिर्फ दीदी के हिसाब से चलाऊं, सारी जिंदगी दीदी बताए रास्तों पर चलाऊं, एंड जिससे शादी करना चाह रहा था उससे हो नहीं पाई। दीदी के कहने पर कहीं शादी कर ली मैंने, और अपनी शादी से खुश नहीं रहा। पर मैं अपना प्यार नहीं पा सका, पर मैं अपने बेटे आयुष्मान के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। आयुष्मान की शादी उससे से होगी जिससे वो प्यार करता है, उसकी जिंदगी में अपनी तरफ बर्बाद नहीं होने दूंगा। जब मैंने वो रोल किया, उस इमोशन को पकड़ा, मैंने कहा ये परफेक्ट है रोल मेरे लिए। इन लोगों ने जजमेंट सही थी, तो साइड डॉक्टर नहीं है, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है। मैंने कहा ये रोल मेरे लिए परफेक्ट है, एंड परफेक्ट इन द सेंस इमोशन वाइज परफेक्ट जाएगा, एंड वो अंदर से जो कुड़न और एग्रेशन है, वो उन लोगों ने सही जज किया है। तो मेरे लिए एक अलग रोल हो जाएगा, एंड मे बी दिस कुड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी, इट कुड चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट डिड चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। और मेरा अजूनी शो खत्म हुआ था, कुछ 2-3 महीने हुए थे। फिर यहाँ से कॉल आई कि उनके साथ मैं पहले भी एक शो कर चुकी हूँ, नथ, व्हिच वाज वेरी सक्सेसफुल ऑन दंगल चैनल। और बट वो कैरेक्टर टोटली डिफरेंट था। ये एकदम ही गरीब माँ थी, पॉजिटिव सी, डोसाइल माँ। और ये कैरेक्टर जो उन्होंने जो सुनाया मुझे, ये एक डॉक्टर का कैरेक्टर था। एंड अब जैसे सुना मैंने डॉक्टर प्ले करना है, मैंने कहा वाओ, मैं डॉक्टर तो लगूंगी। ये मेरे थॉट में आई, और मैंने कहा यस, आई वुड लव टू प्ले दिस कैरेक्टर। तो फिर जब मैं वहां गई सेट पे, फिर जो उन्होंने मुझे लुक दिया, आई वाज वेरी हैप्पी। मैंने कहा वाओ, मदर्स को जनरली कम वैसा लुक देते हैं जो हमारा लुक टेस्ट में हुआ था।
एंड जैसा कि उन्होंने बताया कि इनके लाइंस थे, तो वो जिसके प्यार में थे वो, दैट कैरेक्टर वाज बी, उर्वशी। Okay. तो उसका भी यही एक था, और प्लस ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, पकड़वा शादी, हम्म, जो बिहार में होता है, जबरदस्ती शादी करा देना। Okay. वो कितना गलत होता है, उसकी वजह से कितने रिश्ते खराब हो जाते हैं जिंदगी में। उस पे था, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। और प्लस जो इसका पर्टिकुलर कैरेक्टर था उर्वशी का, उसके डायलॉग्स में भी यही था कि मेरे साथ जो हुआ, बिकॉज राघव की पकड़वा शादी हो जाती है इसमें, मेरे साथ जो हुआ, वो मेरी बेटी जो आयुष्मान से प्यार करती है इनके बेटे से, वो मैं नहीं होने दूंगी। आई विल टेक केयर ऑफ माई डॉटर इन दैट Yeah. सेंस। तो अच्छा गया, लुक टेस्ट बहुत अच्छा गया, एंड आई वाज द ओनली वन for that look test. I was very happy, and finally I was finalized also. So it just came like that. So if Gehna show did not exist, then what genre would you guys prefer to work? Like comedy or thriller? I would love. No, you say. well, I would love to work in thriller. Okay. I just seriously love it. और स्पेशली मुझे गन सीन्स बहुत पसंद है। गन ऐसे किसी के ऊपर दिखा के, और फिर वो जो डायलॉग होते हैं ना, वो दमदार डायलॉग, आई जस्ट लव टू डू इट। कहना में भी था, एंड अभी मैंने एक और सीरीज की है, उसमें मेरा वैसे ही डायलॉग है, प्रॉपर वो गन लेके उसके माथे पे लगाती हूँ, एंड आई जस्ट से दोस डायलॉग्स। शायद रियल लाइफ में मैं ऐसा नहीं कर पाई हूँ कभी, इस वजह से मुझे वो अच्छा लगता है। सो आई वुड लव टू डू थ्रिलर्स। इनका तो मैं बताऊं थ्रिलर, मैं अपना तो बता रहा हूँ बाद में, इनका मैं बताता हूँ। ये वो गन की बात करते हैं, इनका उर्वशी और आलिया इनकी बेटी का नाम था। सरनेम नहीं दिखाया गया था, तो हमने इनका नाम रखा था उर्वशी चाकू वाली, आलिया गन वाली, हमने नाम रखा था। हर दूसरे सीन में कभी ये चाकू उठा रही, कभी वो चाकू उठा, हर दूसरे सीन में होता है। तो कितनी बार तो मेरे को चाकू गले पर रख दिया था। एक्चुअली Yeah. अच्छा, मी आई लव डूइंग थ्रिलर्स, be it action thrillers, be it psychological thrillers. I would love to do emotional dramas. I love those. कॉमेडी कर लेता हूँ, अच्छा कर लेता हूँ, बट कॉमेडी फिर वैसी मिलनी चाहिए। बट आई वुड लव टू डू एक्शन एंड थ्रिलर। Okay. So now we have a game segment for you. ओके। You have these cards. एक साइड पे आपका नाम है प्रकाश अंकल एंड एक साइड पे श्रद्धा जी. So I'll be asking you questions Yeah. and you have to answer who's most likely to. Oh. ओके, Who takes longer to get ready on set? वेरी क्लियर। हेलो, एक्सक्यूज मी, Hello. यू ऑलवेज केम लेट No, ऑन सेट। no, no, नहीं no. नहीं नहीं, मैं you मेरा always मेकअप came दूर late दूर on होता set. था, मेरा No, मेकअप no, no, नहीं नहीं no. नहीं And he used to wait for him on the sets, and he used to come very late. I used to अभी like ये शेरवानी डिफरेंट हो गई है, अब इसका कलर मैच नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। I like to make an entrance. प्रकाश प्रकाश जी, प्रकाश जी, प्रकाश जी। श्रद्धा जी। Who forgets the line? वो खुद भी बोलेगी। ऐसे, like this. Sometimes me, sometimes him. Okay. Yeah. Who cracks up during serious situations? That's up. Me. Many a times. Me. Me too. On set, na? On set. Who gives more retakes? He takes. Not nobody. Nobody. Who's the bigger prankster? प्रकाश जी। Me? आलू की टिक्की, how can I forget? Fair. Um, if you both swap your roles, so who would play it better? I would love to play Raghav. She would play it better because I would love to play. उर्वशी में कुड़न और वायलेंस है, राघव में वेरिएशन, राघव में वेरिएशन बहुत है। हाँ। क्योंकि राघव आपने आज तक सास बहू देखा होगा, ये पहला शो था जो ससुर बहू था। Okay. Always against my, मतलब माय डायरेक्टर यूज्ड टू से सारे औरतों वाले काम कर रहा है। एंड मुझे बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि ऐसी सीन्स करने में नहीं मिलते टेलीविजन पे, पर मुझे मिल रहे थे। मतलब एक डोसाइल ब्रदर भी, अकाउंटिंग ब्रदर भी बना के बेटे के साथ वायलेंस भी कर रहा है, कॉलर पकड़ रहा है, उधर दीदी की आवाज आ रही है, फिर चुप हो रहा है, और एक वायलेंट हस्बैंड भी बना, एक लवर भी बना इसके लिए, जिसके लिए बहुत अंडरकरंट चला, और उसके बेटी के लिए फिर एक अच्छा फादर बना इसकी बेटी के लिए, एंड देन एट द सेम टाइम एक लूजर भी बना, लॉस्ट लवर भी बना, के अपना तो नहीं किया इसका, तो बहुत कुछ वेरिएशन था। एग्जैक्टली। और एक चीज अगर सोचेंगे हम इस कैरेक्टर की, राघव की, कि वो जिसको प्यार करता था बहुत ज्यादा, उसकी बेटी
की शादी उसी के बेटे से हो रही है एंड दैट वुमन इज ऑल द टाइम इन फ्रंट ऑफ हिज आईज। तो आप उसकी सिचुएशन समझो, मतलब, और वो कैसे, और वो जो उसका फ्रस्ट्रेशन था वो अपनी वाइफ पे निकालता था। तो वो जो एक कैरेक्टर में कमाल की चीज थी, एक जगह दब्बू है, एक जगह बहुत प्यार करता है, एक जगह एकदम ही जस्ट हेट्स हिज वाइफ, और एक जगह बहुत वायलेंट हो कमाल जाता की है। चीज वेरिएशंस है इस कैरेक्टर। मैं मतलब जितना टर्मोइल राघव के कैरेक्टर में, आई एम टेलिंग यू ना, इट हैज गिवन मी अ न्यू लीज ऑफ लाइफ. इट हैज opened a lot of doors for me as an actor. It has opened a lot of doors of life in front of me कि लाइफ ऐसे भी जी जा सकती है. मतलब आई समवेयर आइडेंटिफाइड विथ राघव कि ऐसा टर्मोइल खाली पर्सनल लाइफ में नहीं, वो उसको दिखाया भी जा सकता है, या उसको टेक द अदर वे राउंड के खाली फिल्मों में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी होता है, उसको निखारा भी जा सकता है. Yeah. तो वैसे जिया भी जा सकता Who's most likely to roast the other person? है. Definitely me. I'll roast. I'll I go. never roast anybody, na? I I can. roast myself. I can roast her easily. Who's most likely to give like a good deep advice? Of course me. I give advice. No, I give good advice. नहीं, I give good advice. Who's most likely to cheer up the other person? Me. Yes, हाँ. I agree. Who's most likely to arrive late at a party? The party. Me. Me too. Showstopper. Me too. Who's most likely to get emotional after watching a scene? Me, I cry a lot. Me too. Me too. Me too. Well, I think all sensitive actors are sensitive. All sensitive actors get emotional after watching a scene. I mean, sensitivity कई बार हम इसको बाकी चीजों से जोड़ के देखते हैं, बट व्हाट इज बीइंग सेंसिटिव, आपके 5 सेंसेस बहुत प्रॉपर काम कर रहे हैं, आपको सुनाई अच्छा दे रहा है प्रॉपर, आपको वो फील अच्छी आ रही है, आपकी टेस्ट, 5 सेंसेस प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो आप सेंसिटिव है. तो इफ यू हैव फेल्ड दैट सीन, डेफिनेटली आप Yeah. भर and I आएगा. cry a lot. Sometimes people laugh at me. कि अरे यार रोने आई है क्या, तुम मूवी देखने आई है? हाँ. You do that? अरे I cry a lot. Titanic में, oh my god, I was crying on and on and on. So you both have been in this industry for a quite a time. तो कुछ ऐसी चीज है जो आपको अभी भी एक्साइट करती है या फिर शॉक करती है about the industry? Talk about the industry and excite about the industry. शौक इस चीज का लगता है कि हिपोक्रेसी किस किस तरह की हो सकती है, वो भी अलग अलग रूपों में नजर आती है. हिपोक्रेट तो है इंसान, पर किस किस रूप तक, कौन से रूप में आ सकता है हिपोक्रेट. एंड एक हमारे सेट पे, इसी सेट पे एक ऐसी चीज हुई जो विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी चीजें भी हो रही हैं हमारे सेट पे. जो चीजें हुई, अच्छा, ओके. ऐसी चीजें भी हो रही हैं हमारे सेट पे कि फॉर अ शो, मतलब छोड़ देते हैं यार, जाने दो, इतना छिछोरापन क्यों. तो वो चीजें शॉकिंग होती हैं कि लोग कितना नीचे गिर सकते हैं. एक्साइटमेंट, मुझे सच बताऊं, एक्साइटमेंट टेक्निक से होती है. अगर मैं कुछ नई चीज सीख गया, जैसे इस शो में मैंने एक चीज सीखी, 4 कैमरा सेटअप में इतनी स्पीड कैसे काम किया जाए, और पहली बार मैंने देखा अपने 30-32 साल के एक्सपीरियंस में, चारों कैमरा एक ही एक्सिस पे लगे हैं. Okay. एक ही एक्सिस पे लगे हैं, यहां से नहीं लगा, Okay. एक ही एक्सिस पे, इसका क्लोज, इसका क्लोज, इसका क्लोज, ऊपर से, और एक वाइड भी चल रहा है. आई एम सरप्राइज्ड इस नोट पे भी काम होता है. एंड यूजुअली हम ऐसे बैठे हैं, एक कैमरा ये लगा हुआ है, एक इस तरफ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है. सोचो अगर तीनों कैमरा ऐसे सामने हो और आप लेफ्ट लुक, राइट लुक, लेफ्ट लुक, राइट लुक, और एट द सेम टाइम वाइड. सरप्राइज, ऐसा काम भी हो रहा है. टेक्निक आपको सरप्राइज करती है. मेरे को एक्साइट करती है, एक्साइट करती है. हाँ यार, ये नई चीज सीखता हूँ मिली कि यहाँ इसमें मैंने देखा, और उसमें एक एलुरा लेंस भी चल रहा है. एलुरा लेंस इज सच अ ह्यूज लेंस, 40 से लेकर 250 तक. एलुरा लेंस के साथ भी चल रहा है, वो भी अच्छा लगा मुझे. मतलब हाँ, नई चीज है यार, मार्केट में जो नई चीज आ रही है एक्साइट करती है ना.
Yes. जो नए सॉफ्टवेयर आते हैं वो बहुत एक्साइट करते हैं। हम्म। अरे मुझे शॉकिंग लगता है इस इंडस्ट्री में कि जो डिजर्विंग लोग हैं उनको क्यों नहीं मिलता है जो वो Yeah. डिजर्व करते हैं। सपोज बहुत मेहनत से कोई शो मिलता है किसी, इट्स नॉट इजी, मैं अभी सीरियल की बात करती हूँ। बहुत मेहनत करता है इंसान, बहुत स्ट्रगल करता है तब उसको एक वर्क मिलता है। तो अगर उस पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट में हर एक के अपने डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, वो अपने कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, Yes. तो आप बेटर है ना कि आप उसको, उसके कैरेक्टर को खत्म करने की जगह आप ये कोशिश करो कि आप अपने आप को बेटर प्रूव करो। आप क्या-क्या चीज़ें बेटर कर सकते हो। वहाँ पर जो पॉलिटिक्स होती है, मुँह पे राम बगल में छुरी वाली कॉन्सेप्ट रहता है। सामने तो इतनी अच्छी दोस्ती होती है, इतनी मतलब वो होती है, एंड आप सोच भी नहीं सकते कि वही इंसान आपको काट रहा है, आपसे आपकी पर्सनल चीज़ें लेता है और वो चीज़ें उनका मिसयूज़ करता है और उनको काट रहा है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है इंडस्ट्री में बहुत शॉकिंग है और मैं तो अभी भी सीख रही हूँ बिकॉज़ आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन और मैं उतना ज़्यादा पीआर नहीं कर पाती हूँ, सो कॉल्ड जो आजकल पीआर बोलते हैं ना, वो पीआर नहीं कर पाती हूँ कि लोगों में घुस के बात Yes. करना एंड ऑल दैट। मैं कहती हूँ कि आई विल बी ऑलवेज़ एन ओबीडिएंट एक्टर जो प्रोडक्शन को परेशान नहीं करेगा, डायरेक्टर को परेशान नहीं करेगा, किसी भी कोई एक्टर को परेशान नहीं करेगा। एंड व्हाट इज़ माय जॉब? मैं सेट पे क्यों आती हूँ? मैं सेट पे काम करने के लिए आती हूँ Yes. ना। तो आई एम गिविंग माय ऑनेस्ट वर्क। तो फिर ये पॉलिटिक्स क्यों? क्यों हटाना? क्योंकि क्योंकि अगर एक इंसान आपसे बेटर है, तो आप उसको हटाने की कोशिश करते हो। Yeah. अरे आप अपनी लकीर को लंबा खींचो ना उसकी लकीर से, दूसरे की लकीर को मिटाना क्यों है? तो दिस आई हेट अबाउट द इंडस्ट्री और इट्स बेसिकली अबाउट पीपल, पीपल आर डूइंग इट। और दूसरी चीज़ मुझे एक्साइट करता है, जो हमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स करने को मिलते हैं, प्ले करने को मिलते हैं। आज आप डॉक्टर हो, कल आप इंजीनियर हो, कल कुछ हो, प्लस इमोशंस में कभी आप एक एग्रेसिव इंसान हो, कभी आप एक बहुत ही इमोशनल इंसान हो, कभी बहुत हैप्पी गो लकी हो। तो ये बहुत एनर्जी देता है, मुझे Yeah. लगता है कि बहुत मज़ा आता है। हुँ, आई एम श्योर आई 100% एम राइट हाँ? आई एग्री, हाँ। आई एग्री। ये जो बता रही थी कि अ, आपसे आपकी पर्सनल चीज़ें लेके उसका मिसयूज़, ये इसी सेट पे हुआ है। एंड आई एम सरप्राइज़्ड कि ऐसी चीज़ें शुरू हो गई हैं सेट पे। मतलब बोलूँ? जाने दीजिए, छोड़िए। मतलब आप यू कैन स्टूप सच लो फॉर अ रोल और उससे आपका फ़ायदा क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। मतलब आपने किसी को फिज़िकल हार्म पहुँचा लिया, साइकोलॉजिकल हार्म पहुँचा लिया। मेरी तो टाँग टूटी हुई है अभी तक मतलब, इतना प्रॉब्लम हुआ था। एनीवे मुझे समझ में नहीं आया और कुछ हुआ भी नहीं। उससे उसका कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। कोई नहीं, हम एक्साइटेड रहते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट रोल्स को करने के लिए। लेट्स सी द पॉजिटिव साइड, ओनली द पॉजिटिव साइड। ओके। So while working together, कोई ऐसी चीज़ हो जो आप लोगों ने एक दूसरे से सीखा हो? हुँ। हाँ, मैंने सीखा, मैंने पेशेंस सीखा है इनसे। हाँ, मैं भी यही बोलने वाला था। मैंने कि पेशेंस रखना चाहिए मेरे को पेशेंस रखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस आई कांट डिस्कस हियर, बट वो मैंने इनको देखा, उन सिचुएशन से ये कैसे गुज़रते थे, कैसे उसको इन्होंने फेस किया और फिर भी पेशेंट रहे। उसका फ़ायदा उनको ये हुआ कि उन्होंने एक अच्छा लंबा स्पैन अपने कैरेक्टर का अच्छे एनवायरनमेंट में अपने हिसाब से उन्होंने कैरी ऑन किया। सो अच्छा, पेशेंस। वो आप वो दशहरे वाले सीन की बात कर रही हैं। नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। हाँ। आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट एनीथिंग। बट मैं हाँ, एक्चुअली बात कर रही हूँ कि वो पेशेंस रखना चाहिए बिकॉज़ दैट्स नॉट योर प्लेग्राउंड। यस आई अंडरस्टूड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि जो भी सिचुएशंस रही अलग-अलग, खाली दशहरा नहीं, बहुत सी हाँ, चीज़ें रही, बहुत से कैरेक्टर्स रहे। मैंने पेशेंस इसलिए रखा क्योंकि मेरा ये था कि मैं आया क्यों हूँ इधर, मेरा फ़ोकस क्या है? वर्क। वर्क एंड मेरा फ़ोकस वर्क है, हुँ, ऑल दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, एग्ज़ैक्टली। दिस इज़ नॉट मैंडेटरी तो आई नीड टू अवॉइड इट और जो इरिटेट करने लगा था, तो मैं उस सिचुएशन से हट जाता था, हुँ, हट ही जाता था उस सिचुएशन से। पर कुछ लोग होते हैं बेशर्म के पता नहीं माँ-बाप ने क्या संस्कार दिए बोलते हैं ना तो एनीवे वो कुछ होते हैं बेशर्म जो आज तक बेशर्मी कर रहे हैं अलग-अलग चैनल्स पे, ठीक है? तो तो यूजुअली सेट पे आपने कैसा मुझसे क्या आपका सीखा ये नहीं बताया? मैंने आपसे खुश रहना सीखा। अच्छा। मैंने आपसे खुश रहना सीखा। आपने मुझसे पेशेंस सीखा कि इतने पेशेंस के साथ हाँ, रहता है आदमी। मैंने आपसे खुश रहना सीखा।
हर सिचुएशन में कैसे खुश रहो। Yeah. So usually सेट पे, गहना के सेट पे आपका शेड्यूल कैसे रहता है? ओह, शेड्यूल इज वेरी हेक्टिक। मतलब आप पहुंचो सवेरे 10 बजे, रात को 10 बजे पैकअप है। बीच में आपको सांस लेने की फुर्सत मिल गई तो अच्छा, क्योंकि बीइंग इन द मेन फैमिली तो यू आर प्रैक्टिकल इन एवरी सीन। इनिशियली तो मतलब 3 महीने में सिर्फ खड़ा रहता था, यूं ऐसे देखता रहता, बट आई वाज देयर उसके परफॉर्मेंस के लिए, उसके बाद सीन्स मिलने लगे। मेरा ऐसे रहता है, 8:30 का कॉल टाइम रहता था एवरीडे, और वही 9:30 9:40 पैकअप। तो हेक्टिक ही रहता है, जितने भी हम डेली सोप्स करते हैं हाँ। उसमें आपका ऐसी है 12-13 आवर्स यू हैव टू वर्क। और अच्छा भी लगता है, अच्छा भी लगता है। अच्छा भी लगता है। इट्स गुड टू बी बिजी, गुड टू बी वर्किंग, सो इट्स नाइस। हाँ, एक्चुअली आई वाज टेलिंग समबडी द अदर डे, पूछा गया था कि फिल्म और टेलीविजन में क्या फर्क है। मैंने कहा फिल्म 40 दिन की पिकनिक है, टेलीविजन 365 दिन की मजदूरी है। नौकरी नौकरी है। आई कॉल इट हाँ, नौकरी। नौकरी है। मतलब आप कभी अ, जो बिल्डिंग में सेट होते हैं, पहले वाले पे, दूसरे वाले पे, तीसरे वाले पे, उसमें जो सेट होते हैं, कभी आप शाम को 5 साढ़े 5 बजे अगर पैकअप होता है आपका, और अगर आप उतरते हो वहां से, आपको लिफ्ट नहीं मिली, पैदल उतरना पड़ा आपको, आपको बाकायदा ये फीलिंग आएगी आज फैक्ट्री जल्दी बंद हुई है तो मैं निकल रहा हूँ, बाकायदा ये फीलिंग आएगी। और मजा आता है ना, और मजा ही जल्दी मजा पैक आता होने पे। है, मजा आता है। सो अभी नेक्स्ट इज अ गेम, इट्स अ चैलेंज। Okay. आप दोनों को टीवी शोज के नाम कार्ड दिए जाएंगे एंड यू गाइस हैव टू एक्ट इट आउट। Okay. तो ये आपका है एंड दिस इज योर्स। यू गाइस विल हैव 1 मिनट। फेमस, अच्छा बोल नहीं सकते ना। हिंदी इज दिस, I don't know. Hindi is this. हिंदी 5 5 letter word. चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। 1 हिंदी नागिन। ओह गॉड, अब यार अभी मैं 6 letter word. हिंदी ओल्ड को ओल्ड। घूंघट, पल्लू, आंचल, दुल्हन, वधू, बालिका वधू। मोर मोर ऑप्शन। दुल्हन, पल्लू, वधू, अम, घूंघट, दुल्हन, वधू, बालिका वधू। मोर ऑप्शन फॉर दिस। ये सुना ही नहीं मैंने, 6 letter word। टाइम्स अप। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास बहू बोलते तो पता ही चल जाता ना। ओके नेक्स्ट। मैं करूं? हाँ लेकिन नए हैं पुराने हैं सॉन्ग ये सीरियल। मुझे भी पता नहीं। बिकॉज़ आई डोंट नो। दोस्त, प्यार, मोहब्बत, ताकत, साथ, 3 लेटर वर्ड हिंदी। एक हम बोल साथ साथ। एक आपने बोल दिया। साथ 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 दोस्ती, साथ साथी है। साथ निभाना साथिया। चलिए। ओह गॉड दिस सो डिफिकल्ट। अरे बाबा। The first one is easy, I feel. हाँ easy, but how to explain? New is One letter word. आसमान, नहीं गगन, उसको कैसे बोलेंगे? How to say latest?
Latest. Adi. I won't be able to tell. Uh, no, I won't be able to explain this. चलो बता दो. Anupama. How to say this? Okay. कट कर देना ये मत डालना. हाँ चलो. हिंदी. One letter. खाना. ये कैसा खाना? खाना खजाना. खिचड़ी. Yeah, nice. खिचड़ी. खिचड़ी बना दिया खाने का. अच्छा. Four letter word. हिंदी. घर. दो घर. Wait. Four letter word. हिंदी. Second. घर. Third word. घर. घर घर की कहानी. कहानी घर घर की. Yeah. Okay. Nice. Okay. एक और बचा है. हाँ. मैं भी देखूं. Letter word. हिंदी. First word. First. सारा. मेरा. एक ही लेटर का है क्या? सारा. थर्ड. Third word. सारा सारा. सारा भाई वर्सेस सारा भाई. Nice. This was a very fun segment. So This one was not fun for me. yeah, that was a little tricky. tricky. Yeah. So before we wrap up, I would like to ask you guys a question. Where what is the one thing you enjoy about the industry and one thing you think should be changed, maybe? One thing I enjoy because we get to meet different people and we get to do different kind of work and we learn so many things from different people we meet in every show, in every film or every project. Or so I love that thing to gain knowledge from such people. That is what I love, and I hate politics on set. That is what I hate. Like he said, one thing I like about this industry is it gives you a lot of job satisfaction. जो आपको काम करना है आप कर रहे हैं. It gives you a lot of job satisfaction. You learn a lot of things. मतलब मैं अमूमन देखता हूँ लोगों को कि आप किसी फील्ड में हो तो एक ही किस्म के इंसान से मिलते हो, जो उन्होंने कहा यहाँ हर किस्म का इंसान मिल रहा है आपको. मतलब आप अनपढ़ भी मिल रहा है और आपसे बहुत ऊपर भी मिल रहा है. एंड आपको सबके साथ इंटरेक्ट करना ही करना है बीइंग एन एक्टर. या तो वो जो क्या बोलते हैं हम, पर्ल्स ऑफ विजडम, इनको मोती बोलूंगा मैं. ये एक्सपीरियंस मोती होते हैं. एक आदमी गया था पहाड़ पे, एक बहुत बड़ा खजाना है उसके, किसी ने बोला, वो चलता गया रास्ते में एक्सपीरियंस हुए, पत्थर पड़ा कि क्या हुआ, बोला यही तो मोती है और हीरे थे, यहाँ कहाँ जा रहा हूँ मैं. ये एक्सपीरियंस ही मोती और हीरे हैं. तो यही बहुत अच्छा लगता है. एंड पॉलिटिक्स ऑन सेट, शी इज सेइंग, आई एक स्टेप ऊपर जाऊंगा मैं. पॉलिटिक्स ऑन सेट तो है ही, वो तो मतलब बहुत छिछोरा है. वो छिछोरापन है, लोगों का दोगलापन. या मतलब जो दोगलापन है लोगों का, हिपोक्रेसी है, वो मुझे बड़ा अजीब, बड़ा अजीब है. आई हेट दैट. So before we wrap up, what's next for both of you guys? Any exciting projects upcoming? Yes, Yes, it is coming. a couple of things are coming. Okay. One is our vertical series which we have just shot. You were also there in it. Yeah. And one more thing coming up, which is already on air, a crime series.
and we are planning something musical also. Okay. So you'll be a part of it, integral part of it, all of you. And I And it's don't, gonna be different. It's gonna be very yeah, different. I don't want to tell it. I don't want to say it. I'll tell you after the show. Sure. And one last message you would like to give the audience, or maybe the students or upcoming actors. Be happy, go by the wind, go by the flow, let nature take its course. If it is destined to happen, it will happen. And just go by your instinct, work hard, be alert, and stay safe. एंड आई वुड लाइक टू से कि हमारे काम देखिए, जो भी हम काम करते हैं देखिए उसको, और हमें अप्रिशिएट कीजिए, और साथ ही साथ अपना आपका जो लाइफ का एम है उसको मत भूलिए, उस पे काम कीजिए। इफ यू वांट टू बिकम एन एक्टर तो प्रैक्टिस करिए, चीज़ों में अपने आप को इम्प्रूव करिए, देखिए आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, और उसको अपने आप को खुद क्रिटिसाइज करने की हिम्मत रखिए कि मैं यहाँ कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे सही हूँ, तो यू विल इम्प्रूव डे बाय डे। वो करिए, प्लस लवर्स वो तो है ही, एंड आपके जो सेलिब्रिटीज हैं, जो भी जिनको आप रोल मॉडल मानते हैं, उनको एक रोल मॉडल की तरह रखिए। उनके पर्सनल स्पेस में उनको मत डिस्टर्ब करिए, बिकॉज हर एक की एक पर्सनल लाइफ होती है। Yeah. सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए ना उस चीज की, तो वो रहते हुए वो फ्रीडम दीजिए उनको, और साथ साथ अपने गोल को कभी मत भूलिए। अगर आप एक्टर हैं तो प्लीज काम कीजिए, अगर आपको थिएटर करना है आप थिएटर कीजिए, चीजों को सीखिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं, सिर्फ मुंबई आकर रहने से कुछ नहीं होने वाला है। सो यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन दैट, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। That's wonderful. And that brings us to the end of another exciting episode. If you have viewed till here, don't forget to subscribe to our YouTube channel, follow us on our Instagram, and like and share this video with your friends and family. Until next time, I am your host Twinkle Raheja, and this is Talk Beyond Title. Signing off. Yay!